ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 15-20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਉੱਥੇ 5 ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਹੱਦ ਇੱਥੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਮਹਿਲਾ ਜੋ ਇੱਕ ਵਿਧਵਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੇਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇੱਕ ਪੇੜ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਾਲ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਸ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਖੜੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ ਲੋਕੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਲੇਕ 'ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਧਰਨੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸੇ 'ਤੇ ਹੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਲੇਕ 'ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅੱਜ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ। ਮੈਮ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕੀ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ? ਪਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ? ਰਾਜਪੁਰੇ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੋ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਗੂੰਜ ਯਾਨੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਧਰਨੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਾਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੋਈ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਕੋਈ ਵੱਖਰੇ ਨੇਗੇ, ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਕੋਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਾਬਰ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਫ ਹੈਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਯਾਨੀ ਰੇਪ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਟੀਆ ਹਰਕਤ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਵਾਸਤੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਆ ਗਏ। ਆਪਣਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਭ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ ਆਪਣਾ ਸਭ ਦੀ ਸਪੇਸ ਹੈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗਲਤ ਮੰਨਦੇ ਆਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਜੀ? ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਆਕਾਸ਼ ਜੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਉਂ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਨਾ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੜਕਾਉਂਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਲੱਡ ਆਏ ਸੀ, ਸੋ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਇਹ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉੱਧਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਸੋ ਇਸ ਝਗੜੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉਹ ਹੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਰਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੋ ਅੱਜ यानी बांग्लादेश ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ बारे? मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि बांग्लादेश में जो हमारे हिंदू है वो बड़े संकट से गुजर रहे हैं और जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। ह्यूमन बीइंग के आखिरकार वो भी इंसान है, हम भी इंसान हैं। हमारे देश में, इंडिया में सब कम्युनिटी, सिख, हिंदू, ईसाई, मुस्लिम, सब भाई भाई करके रहते हैं। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा जो हमारे हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है बांग्लादेश में, वो एक किस्म का बहुत ही बड़ा अन्याय है। तो वहाँ की जो सरकार है, जो वहाँ के नुमाइंदे हैं गवर्नमेंट के, तो उनको ध्यान देना चाहिए कि जो 1,30,00,000 के लगभग हिंदू है वहाँ, तो अल्पसंख्यक है वो लोग। अल्पसंख्यक के नाते उनकी सिक्योरिटी, उनकी हिफाजत करना वहाँ की गवर्नमेंट का काम है। तो हम तो यही कहते हैं हिंदुस्तान में कि हम तो भाई सारे बिल्कुल सेकुलर मुल्क है और बांग्लादेश भी सेकुलर के नाम में 71 में बना था।
तो आजकल वहाँ सेकुलरिज्म नहीं दिखाई देता है, तो अपीजमेंट हो रही है वहाँ हिंदुओं की। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗਜਵਾ ਹਿੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ये असंभव है, असंभव है। गजवाए हिंद हमारे देश में बिल्कुल ही नहीं बन सकता है, क्योंकि यहाँ सब 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 जाति के, सब धर्म के लोग रहते हैं। गजवाए हिंद का ख्वाब तो 100 साल नहीं आ सकता है, क्योंकि सबको साथ लेके, सबको साथ चलने का, लोगों को अपने मौलिक अधिकार यूज़ करने का, सबको अपना जीवन जीने का एक स्वतंत्रता मिली है। तो गजवाए हिंद ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ की तरफ को सरकार को भी ध्यान देना चाहिए, और भारत सरकार को भी मैं कहूँगा कि इनको भी कहीं ना कहीं हस्तक्षेप अपने माइनॉरिटी जो हिंदू कम्युनिटी है, आखिरकार वो भी हिंदू ही थे। सन 47 से पहले तो वो एक ही देश था हमारा, बांग्लादेश, पाकिस्तान। पाकिस्तान से सन 71 में बांग्लादेश अलग हुआ है, तो ये मतलब हिंदुस्तान का ही पार्ट था। तो अब अलग हुए हैं, तो अलग होने से ये थोड़ी नहीं है कि भाई किसी कम्युनिटी को आप डोमिनेट करो या ख़त्म करो, या गजवा हिंद यहाँ दूर दूर तक कहीं संभावना नहीं है। ਗਿੰਦਾਂਜਲੀ ਮੈਮ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਰੇਪ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਾਲ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ये बहुत ही मतलब दुखद है कि जो हमें ये देखने को मिलता है। आजकल हम बोलते हैं कि लड़कियां चांद पे पहुंच गई है, इतना कुछ हुआ है, लेकिन बांग्लादेश की न्यूज़ काफ़ी टाइम से चल रही है। इट मीन्स कोई स्टेप नहीं उठाया जा रहा है उसके लिए, या फिर हम ये बोलते हैं कि हर जगह ऐसा ही क्यों है कि हिंदुओं के साथ हो रहा है, मुसलमान वहाँ पे, यानी कि ये कहीं ना कहीं ये हमारी ही कमी है कि हिंदुओं में यूनिटी नहीं है। अकॉर्डिंग टू मी मुसलमानों में बहुत यूनिटी है, वो यूनिटी दिखा के कुछ भी कर लेते हैं, हिंदू कर ही नहीं पाते हैं कुछ भी। वहाँ पे वहाँ भी इतने सारे लोग होंगे कि वो इकट्ठे होके कुछ ना कुछ कर सके, अगर वो आपस में मिल जाएं, और वो भी कर सकते हैं ऐसे, पर नहीं करते। और सरकार क्यों नहीं स्टेप उठाती है? इसकी न्यूज़ बहुत ज़्यादा है, पर ये शायद आई थिंक टीवी पे इतना ज़्यादा नहीं दिखाई जाती। जैसे और न्यूज़ होती है तो उसको हम बिल्कुल ही 24 घंटे दिखाते रहते हैं, इससे अवेयर नहीं रखा जाता लोगों को। पर यह है कि सरकार को भी स्टेप उठाना पड़ेगा कुछ ना कुछ इसके लिए, और लोगों को भी यूनिटी दिखानी पड़ेगी। अब ये ना सोचे कि वो किसी और का था, हम बच के रह जाते हैं, हम आगे जाएंगे तो हमारे साथ ये होगा, इस टाइप का नहीं होना चाहिए। बाकी आपस में अगर हिंदू भी मिल के रहें, सब आपस में रहें। वैसे हमारे यहाँ तो नहीं होता है कि मुसलमान अलग है, हिंदू अलग है, वो एक अलग ही जगह है कि वहाँ पे ऐसा चल रहा है कि हिंदू मुसलमान का। पर अगर आपस में मिल के करे तो आई थिंक ये हो सकता है सॉर्ट आउट, बट इसके लिए बहुत बड़ा स्टेप उठाना पड़ेगा और लोगों को आगे आना पड़ेगा, जो है काफ़ी मुश्किल, पर करने से ही होगा। पर गीतांजलि जी, बात ये है कि हिंदुस्तान में भी बहुत सारे मुस्लिम यानी परिवार हैं, वो यहाँ पे सेम है, लेकिन हिंदुओं को ही क्यों इतनी बुरी नज़र से देखा जाता है कि आज हिंदुस्तान में भी बहुत सारे यानी लोग सड़कों पे उतर चुके हैं? एक्चुअली हमारे यहाँ तो आप किसी से भी पूछोगे, हमारे घर के पास भी अगर कोई मोमडन रहता है, मुस्लिम परिवार है, तो वो सब यही बोलते हैं कि हम सेफ़ है। किसी को फील नहीं होता कि यहाँ पे हिंदू फैमिलीज़ हैं, हम उनके साथ रह रहे हैं। बट एक्चुअली जो बाहर की कंट्रीज़ है, हिंदू सेफ़ इसलिए नहीं है आई थिंक, क्योंकि मुसलमानों को ये लगता है कि हमें अलग ही देश बनाना है, अपना अलग ही जगह बनानी है, या फिर उनके दिल में कुछ ऐसा है कि कट्टरपंथी आ जाती है, जो कि ये है तो हम इंसान ही हैं, आपस में ही हमने डिवाइड करा हुआ है कि हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं। ऊपर से भगवान ने तो बना के नहीं भेजा है ऐसा किसी को, बट वो उनको ऐसा पढ़ाया गया है आई थिंक, शुरू से उनको दिमाग में ये डाल दिया जाता है कि आप अलग हैं, आप अलग हैं, ये आपके साथ के नहीं हैं। तो वो कुछ ऐसे ही लोग हैं जो पढ़े नहीं हैं, आगे पढ़ाया नहीं जाता, उनके दिमाग में बस ये बताया जाता है कि आपको कट्टरपंथी करनी है। तो वो वही लोग हैं। अब सब ऐसे नहीं हैं, जो पढ़े लिखे हैं, अच्छे हैं, वो सब नहीं है ऐसे। वैसे बहुत अच्छी बातें आपने की। आपको क्या लगता है कि हिंदुस्तान में जैसे गजवाए हिंद की अगर बात करें कि बहुत सारे मुस्लिम ये बात कर रहे हैं कि हिंदुस्तान को यानी वहाँ पे हिंदुओं को ख़त्म किया जाएगा, यानी हिंदुस्तान पे अटैक हो, आपको क्या लगता है कि हिंदुस्तान पर ऐसे कुछ हो सकता है कि जैसे उधर चल रहा है, हिंदुओं को ख़त्म किया जा सकता है हर आसानी से? ऐसा तो नहीं हो सकता। कहाँ कहाँ और किस किस को ख़त्म करेंगे, ये तो गलत बात है जो वो सोच रहे हैं, और ऐसा पॉसिबल है भी नहीं। अब इतनी आबादी है, इतने लोग हैं, हर धर्म के लोग हैं,
आप किस किस को ख़त्म करोगे? ईसाई है, हिंदू है, सिख है, सरदार है, सब हैं, किस किस को कौन एक देश, और सब मिलजुल के ही ये देश बना है, क्योंकि यहाँ पे इंडिया की यही खासियत है कि यहाँ पे अलग अलग मतलब धर्म के लोग हैं। तो ऐसा तो हो नहीं सकता, वो सोच रहे हैं, बट आई डोंट थिंक सो, ये पॉसिबल है ही नहीं कि ये सोचे कि एक देश को वो वहाँ भी नहीं कर पाएंगे कि सारे के सारे हिंदू निकाल देंगे, एक देश बना लेंगे और उसके बाद यहाँ पे तो बहुत मुश्किल है कि अटैक करना हिंदुस्तान पे। वो हमें पता है कि हमारी सरकार भी फिर किसी से कम है नहीं, जवाब पलट के मिलेगा ही मिलेगा। ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲਵਾਂਗਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਸਮਾਜ ਕਿੱਥੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ये फिर हम ये नहीं कह सकते कि ये वो औरतों की इज्जत करते हैं, क्यों? औरत तो औरत है। औरत का ये नहीं है कि वो मुसलमान की औरत है तो वो बहुत अच्छी है, हिंदू की है तो अच्छी नहीं है। उन्हें सिर्फ फिर ये सिखाया गया है कि आपको सिर्फ अपनी धर्म की औरतों की करनी है इज्जत, और वो भी जो ऐसे लोग होते हैं, मेरे को नहीं लगता कि वो अपने धर्म की भी सारी औरतों की इज्जत करते होंगे। वो तो जहाँ उन्हें मौका मिलेगा वो अपनी धर्म की औरतों के साथ भी कुछ ना कुछ करेंगे, पर उनको सिखाया ही नहीं गया है कि औरत औरत होती है, वो किसी भी धर्म की हो। ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? रोहित वत्स। ਰੋਹਿਤ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? हम हरियाणा से गुड़गांव। ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ, ਜੋ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ये पहली बात तो ये हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है। और इसका ये कहना चाहूँगा कि जब तक एक रेडिकलाइजेशन होती है मुसलमानों में बहुत ज़्यादा है, कि वहाँ की जो सरकार भी है वो भी इसको सपोर्ट कर रही है। फिर मुसलमान पढ़े लिखे कम है, एजुकेटेड नहीं है, काम वैसा नहीं करते अच्छे लेवल का करे कि जॉब्स करे या अच्छा बिजनेस करे। वे थोड़ा इस चीज़ में है कि हाँ हमें इस्लाम फैलाना है, हमें दुनिया को परेशान करना है, ये वो। तो अब वे सोचते हैं कि अच्छा हम इन्हें मार दें तो ये डर जाएंगे। ठीक है, डर जाएंगे, वहाँ से अलग हो जाएंगे। पर आप एक इमेज अपनी वर्ल्ड में ना बहुत गंदी बना रहे हो, बहुत गंदी बन भी चुकी है। दुनिया आपको आतंकवादी की नज़र पे देखती है। ठीक है, आप किसी भी धर्म के साथ, ऐसा नहीं हिंदुओं के साथ, आप क्रिश्चियनों के साथ हो उनके साथ दिक्कत है, आप ज्यूज़ के साथ हो उनके साथ दिक्कत है, जैसे इज़राइल है, काफ़ी सारी दिक्कत। तो ऑस्ट्रेलिया में भी हुआ ये बहुत सारा। तो ये अपनी खुद ही इमेज ख़राब कर रहे हैं कि ये अब कुछ भी नहीं, कि इस्लाम हमें फैलाना है, इस्लाम हमें फैलाना है। इस्लाम आप फैला दोगे कि ठीक है कर दोगे, पर फ़ायदा क्या है? कि आपने तो अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली। आप तो एक टूटी मकान की छत में रहे हो, आपने अपने बच्चे पाल दिए उसमें, आप मर गए तो आपके बच्चों को क्या क्या मिला? कुछ भी नहीं। आपने किया, गलत किया, और जो भी किया ऐसा है कि ठीक है भाई, आप ये कहते हो कि आपका अल्लाह देख रहा है, तो अल्लाह तो ये भी देख रहा है कि भाई क्या गलत हो रहा है। ये हाँ, ये ऐसा तो है नहीं कि अल्लाह के हिसाब से ये सही है, कि ये कह रहा है, अल्लाह कह रहा है कि भाई रेप करो, तुम मर्डर करो, तुम वो करो। ठीक है, तो बहुत कुछ है कि ये गंद फैला रहे हैं ये, और कुछ भी नहीं है कि ये कुछ भी बता रहे हैं आप। और ये जहाँ मेजॉरिटी है इनकी, ये वहाँ तंग करते हैं। माइनॉरिटी में इनको बहुत अच्छे से रहना आता है। इंडिया में भी है, इंडिया में भी जैसे बांग्लादेश में जहाँ माइनॉरिटी है वहाँ ठीक है। फिर एक थोड़ा सा वो हो जाता है सरकार का भी, जो मोहम्मद यूनिस की सरकार है वो चाहती है कि ये सारी चीज़ें हों ताकि इलेक्शन लेट हो। अभी फरवरी में है, देखते हैं ताकि उनको फ़ायदा मिले। ठीक है, इंडिया में सरकार भी कई हद तक वो कंट्रोल करती है जितना हो सकता है, पर थोड़ा इनमें है कि थोड़ा ये अगर मुसलमान उस चीज़ से निकले बाहर कि हाँ भाई हमें कुछ अपने लिए करना है, हमें कुछ अपने बच्चों के लिए करना है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। वरना इन चीज़ों में तो ज़िंदगी बीत जाएगी। कई सालों से चलता आ रहा है, ऐसा नहीं है कि अब है। ठीक है, और ये तो वो बात है, चलता ही रहेगा, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਨੌਲੇਜ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਬਾਰੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮੁਸਲਿਮ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਹ यानी अनपढ़ता ਵੱਲ ज़्यादा ਜਾਂਦਾ है? ये अनपढ़ता जो पढ़ा लिखा है, अब जैसे अनपढ़ता भी है, कुछ होता है कि इनकी जो किताब है, सोच जो है, हाँ, जो सोच है वो ये सोचते हैं कि अब जैसे कि अटैक हुआ था दिल्ली में, उसमें साइंटिस्ट थे, उसमें डॉक्टर्स थे, वो पढ़े लिखे थे, काफ़ी अच्छे, वेल एजुकेटेड, पर उनने भी साथ दिया इन चीज़ का। सिर्फ आइडियोलॉजी कि ये वैसे है कि इनको रेडिकलाइज किया जाता है बचपन से कि आप बस जी रहे हो, आप इस्लाम को फैलाने के लिए जी रहे हो, आप काफिरों को मारने के लिए जी रहे हो। और ये सारा चलता है कि गलत काम, कि इनको इनके जो भी बड़े हैं जो भी कर रहा है ये, तो ये बढ़ता जा रहा है। बल्कि इनके घर में माँ बाप इनके एक है कि भाई तुम पढ़ो, तुम अच्छी नौकरी लगो, तुम अच्छा जॉब करो, तुम अच्छा बिजनेस करो, तुम अपने लाइफ को सेटल करो, तुम अपने बच्चों के लिए करो, तुम अपनी आने वाली जनरेशन के लिए करो।
तुम ये देखोगे कि हाँ मैं इस्लाम के लिए कर रहा हूँ, ठीक है, तुम मर रहे हो एट लास्ट, और तुम्हारा फ़ायदा उठाया जा रहा है। जो कह रहे हैं कि हाँ तुम्हें इस्लाम के लिए मरना है, उनके बच्चे देखो, उनका लाइफस्टाइल देखो कैसा है। वो बहुत ज़्यादा अच्छे लाइफस्टाइल में रह रहे हैं, उनके बच्चे काफ़ी ज़्यादा पढ़ रहे हैं, एजुकेटेड है, काफ़ी बिजनेस अच्छे रन कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, पर तुम नहीं कर पा रहे। तुम बस वो 500 की पत्ती के लिए तुम हर जगह लड़ रहे हो, बस ये है, यही है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? हिंदुओं में एकता नहीं है। हिंदू फिर एकता भी अगर है, एक तो जातियों में बटा हुआ है, ब्राह्मण गुज्जर जितनी भी है, ठीक है, एक दूसरा है हिंदू काम पे है अपने फोकस। हिंदू ये नहीं है कि मुझे हिंदू धर्म फैलाना है, कहता है कि मुझे दूसरों से क्या हाँ बस वो ये कहता है, उसे अपने से मतलब है, उसे अपना बिजनेस रन करना है, उसे अपनी जॉब करनी है, उसे अपनी लाइफ सेटल करनी है, उसे अपने बच्चों के लिए करना है, आगे पीढ़ी के लिए करना है, उसे एक क्लास, एक स्टैंडर्ड है। वो ऐसा नहीं है कि हिंदू भी नहीं करते, हिंदू भी करते हैं, पर जो है ना एक समझ वाली बात है कि जो बंदा अपने क्लास और स्टैंडर्ड मेंटेन करके चलेगा वो नहीं करेगा ये चीज़ें। घर वाले भी हाँ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂ, ਕੀ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ? अभिषेक ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗਜਵਾਏ ਹਿੰਦ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਜਵਾਏ ਹਿੰਦ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ? बिल्कुल कोशिश अगर कर भी सके तो, पर हमारे यहाँ ज़्यादातर माँ बाप ये कहते हैं कि तुम ही सिर्फ एक्टिविस्ट बनोगे अकेले, या तुम ही को सब कुछ करना है, तुम अपने काम पे लगो, पहले कुछ कमाओ, तुम अपने काम से काम रखो। दो भीड़ अगर हम वो भी इकट्ठा कर रहे, कोई प्रोटेस्ट कर रहे हैं हिंदू के लिए, तो उसमें बहुत ज़्यादा कम वो हमारी तरफ से लोग जा पाते हैं, क्योंकि हमारी तरफ से इतना सोचते हैं कि हम क्यों ही जाएँ, इसका रीज़न बहुत ज़्यादा कि हम नहीं जाना चाहते, या हमें अपने से मतलब है ज़्यादा, हम उस चीज़ में, क्योंकि हमारे जो इनहेरिटेंस वो हमें मिला है कि पढ़ो लिखो और कुछ बनो। हमें कोई कभी इस इम्पोर्टेंस को समझ नहीं आया कि अगर हम माइनॉरिटी हो गए तो हमारे साथ क्या हो सकता है अपने ही देश में। हम इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे, और बिल्कुल भी अगर हम अभी भी वो नहीं करेंगे कि ठीक है सोशल मीडिया तक अपने स्टोरीज़ वगैरह या जो भी पोस्ट वगैरह लगाते रह जाएंगे, तो उनसे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ऑन ग्राउंड रियलिटी हमें उतरना पड़ेगा अगर करना है तो कुछ, तो मैं इस पर ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ? सरकार अपनी तरफ से कर रही है बहुत कुछ, जो भी है, क्योंकि मेनली बीजेपी को हम ये कहते हैं कि हिंदू की साइड की पार्टी है, ये वो है, पर एक पॉइंट पर अगर हम सोचें कि तो बहुत सेक्युलर बीजेपी ही है, क्योंकि उस टाइम से सबको इक्वल राइट मिल रहे हैं, और पर जो वो एक्स्ट्रा उनके जैसे मुसलमानों में वो होते हैं, ज़मीन को वो कर लेते हैं, मतलब उनकी वो वक्फ बोर्ड, हाँ वक्फ बोर्ड पे वो कर लेते हैं, तो उसको ख़त्म कर रही है धीरे धीरे, वरना ये किसी को भी अपना वो बना के और अपनी ज़मीन वो कर सकते हैं, सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं अपनी ज़मीन का। सरकार हुई या कुछ वैसे हुआ, ये पहली बात तो सरकार को ये करना चाहिए, जो भी रेडिकलाइज कर रहा है, ये पहली बात तो ये फंडेड होते हैं। किसी को अगर ये लग रहा हो कि नहीं ये फंडेड नहीं है, ये फंडेड है। ISI पाकिस्तान ये चाहता है ताकि इंस्टेबिलिटी बनी रहे, इंडिया का नाम वर्ल्ड पे ख़राब हो कि ये भाई ये मुसलमानों के लिए ठीक नहीं है, ये ऐसा है, उसकी इमेज ख़राब हो, उसके रिलेशन ख़राब हो अरब के साथ, ताकि उसका नुकसान हो इकोनॉमिकली, ठीक है, ये फंडेड है। और सरकार ये कर सकती है कि सरकार जैसी हमारी रो है, IB है, ये इनको बंद करना चाहिए। इंटेलिजेंस है, आपके पास इनपुट है, तो इन पर बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लो। स्ट्रिक्ट एक्शन मतलब कि भाई इन्हें जान से ही मारना पड़ेगा, कुछ इलाज नहीं है, आतंकवादी की तरह हैं ये, ठीक है, ये बस पनप रहे हैं और खोखला कर रहे हैं ये, और ये करते रहेंगे। इन्हें समझाओ बैठ के कि आप ये मत करो, आप अपना काम करो। जैसे कई बार कहते थे पहले के टाइम पे कि मुसलमान नहीं पढ़ पा रहा तो जब ये कर रहा है, बट आज के टाइम पे देख लो, दिल्ली अटैक हुआ, उसमें डॉक्टर थी साथ, क्या इतनी पढ़ाई करी उसने, 10 साल तो कम से कम पढ़ाई करी थी डॉक्टर की, सिर्फ उसने इतना पढ़ाई करी, उसके बाद भी उसने ये काम किया। तो ये बात है, ये पीछे से फंडेड है, फंड रोक दो, ये नहीं लड़ेंगे। ये अपना, क्योंकि मुसलमान भी है, कोई भी है, मुसलमान हो चाहे सिख हो चाहे कोई, वो ये देखना चाहता है कि घर में उसके बच्चे हैं, उसके माँ बाप है, बूढ़े सब चीज़ हैं, वो ये देखना चाहते हैं कि भाई हम बच्चों को और माँ बाप को अच्छी लाइफ दे सकें। पहले उनके लिए सब यही है, वो अपने अल्लाह को मानते हैं, अच्छी बात है, हम अपने भगवान को मानते हैं, अच्छी बात है, जो करना है एक बंद कमरे में वो भी जानते हैं, वो भी ऐसा नहीं है कि नहीं उन्हें नहीं पता कि कैसे रहते हैं, पर जो बात है पैसे के लिए थोड़ा उनको रेडिकलाइज किया जाता है और करते हैं, ठीक है, ये है। मैं PM मोदी जी के बारे में बात करूंगा, उनके बारे में आपकी क्या सोच है? मेरी उनके बारे में ये सोच है कि उनका विज़न काफ़ी अच्छा है, और मोदी जी 2014 से आए हैं, काम ऐसा नहीं है कि उनने सारे ही अच्छे करे हैं,
मतलब 30-40% काम बुरे भी करें, एजुकेशन पे उन्हें काम करना चाहिए था बट उनने उस तरीके से नहीं किया। बट इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में आप नितिन गडकरी, आप रोड इतने अच्छे देख सकते हो, आप रेलवेज इतने अच्छे देख सकते हो, ठीक है, पीछे हैं हम पर कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। फिर एक जो होता है कि अपनी फॉरेन पॉलिसी को वो काफ़ी ज़्यादा हम स्ट्रांगली अब मेंटेन कर पा रहे हैं कि ये देख के कि अब भाई हमें वर्ल्ड पे स्टैंड करना है। हालांकि हम ऐसा नहीं है कि कोई है कि अब दबने वाला चीज़ अब भी है कि थोड़े से हैं कि हम इकोनॉमी वाइज थोड़े कम हैं, कमज़ोर हैं, हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है, ठीक है, इसलिए थोड़ा वो है। पर उस हिसाब से भी बहुत देखे कि हम फॉरेन पॉलिसी में अब जैसे कि देख सकते हैं यूरोप, जैसे रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ, यूरोप ने कहा ऑयल मत खरीदो, ये मत खरीदो, हमने कहा हम खरीदेंगे। आज अमेरिका कहता है कि ऑयल मत खरीदो वरना हम टैरिफ लगाएंगे। जब हमने उस वजह से है कि हमारे लोगों का नुकसान नहीं होना चाहिए, बस उनका विज़न ये अच्छा विज़न है देश के लिए। जितनी भी सरकार आई हैं, कोई भी है, देश के लिए ही काम किया है सबने, वो देश के लिए ही करेंगे, ठीक है। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲੇਕ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਰੇਪ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਆਪਦੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੇਲੀ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ। ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ।